We are on the top the administration and dosage form. In that we have covered oral parenteral route. Now we are on the formulations and different dosage forms. In that we are on the dusting powders. In the last lecture we have covered the aerosol, capsules, colladons. Now we are on the dusting powders. So we have here the word the dusting powders. Dusting powders are different powders are available in the markets for the treatment, topical treatments. Okay, topical use for external use. So we know that one of the dusting powder is Candid. Okay, we have a dusting powder for the in summer season. Okay, Nycil powder. So these powders are used for the externally, not for internal use. Okay, and this dusting powder, they are the fine powder and used for the external use for the infections. Okay, infections by the dusting powders and pharmaceutical active drugs. These are the pharmaceutical active drugs are available in the markets. These pharmaceutically active drugs are incorporated in the fine powder along with the another materials and serve as a dusting powder. So next is the drops. We know since from childhood, okay, means the pediatricians, from the pediatricians to the medicines or to the elderly patients, the drops are given. So drops are different forms: nasal drops, eye drops, oral drops. Okay, so these are also one of the formulations in the dosage forms. In that, the drugs are incorporated in the form of, okay, drops, droplet. This is a dosage form. Okay, one drop, two drop, three drops. These are the drops described for the particular dosage forms. Next is the emulsion. Okay, so in the drop there are solutions. Okay, and drugs to be the instilled into the eye, nose, respective to of the droppers. But in case of the emulsions, but in case of the emulsions, what happens? Oil is dispersed in case of the emulsion. Oil is dispersed in the flavored waters. Okay, in the presence of the emulsifying agents. So emulsifying agent and the oils are incorporated and make as emulsions. So these are used for the internal use. Next is the for that dosage form is enema. Enema is one of the important dosage form. They are suspensions. Enemas are the suspensions. Okay, and are intended for the rectal administrations. Okay, if there is a constipation problem or any infections, at that time enemas are prescribed by the doctors. Next is the gels. Okay, so gels, there are number of gels for the topical use, for the external use. Okay, painkiller gels, anti-inflammatory gels. So these are the different types of the gels are available. There are the aqueous colloidals. They are the aqueous, okay, aqueous form gels are there. Colloidal suspension of the hydrated forms are there. Okay, some of the insoluble ingredients are there. Okay, example is the aluminum trihydroxides is the gel used against the, okay, acidity. These are the different gels are available. Next is the
granules, granular formulation. Okay, powders is converted into the granules, small granules formations, and these are granules are used for the treatments. Granules are also one of the dosage forms. So they are the small irregular particles. These are the small irregular particles. Some particles are of higher size, some of the small size. Irregular size is their granules, and they are often supplied in a single dose sachets. Okay, there are dose is the sachet form. Okay, in the sachet forms it is a dose. Okay, complete sachet. Okay, so I have seen the vitamin D sachets. Okay, some are given, the eno also there is granules, they are also provided in the sachet formats. So these are the granules for the dosage forms, and those they are given. Okay, and content of which are stirred in the waters before takings. Okay, before takings we have to be stir, mix with the waters and make a particular dose, and then this is ready for to takes orally. Okay, so these are the important, one of the important dosage forms, that is the granules. Next is the inhalants. So inhalants, it is taken in the form of inhalations. Okay, through the inhalation of the airs. So these, they contain the volatile liquids. Okay, volatile liquids preparations, and used to relieve the congestion and inflammation of the respiratory tracts. हमने देखा है जिंदा तिलिस्मात देखा है हमने. ओके, जिंदा तिलिस्मात देखा है, और भी जो वोलाटाइल कंटेंट होते हैं. ओके, तो ये जो है हम जो है वेपर के फॉर्म में इनहेल करते हैं. ओके, दिस आर द वोलाटाइल कंटेंट्स आर देयर. तो ये जनरली जितने भी वोलाटाइल रहते हैं, जो भी इनहेलेंट्स रहते हैं, वेपर के फॉर्म में रहते हैं, तो ये हम इसको सांस के थ्रू बॉडी के अंदर लेते हैं. अब सांस के थ्रू बॉडी के अंदर लेंगे तो सबसे पहले इंटर कहाँ पे होंगे, बोलिए. अगर जो हमने कोई ड्रग सांस के थ्रू लिए तो बॉडी के कौन से सिस्टम में सबसे पहले इंटर होगा वो? नर्वस, लंग्स में. सबसे पहले लंग्स में होगा. ओके, मीन्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स आर देयर. फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले बॉडी के अंदर इंटर होगा. सो फॉर द रिक्वायर्ड एक्शन आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में है, एलर्जिक कंडीशंस है. ओके, ब्रोंका इन्फेक्शन है, लंग्स इन्फेक्शन है. ओके, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स है. एट दैट टाइम्स the drugs are directly administered to the required therapeutic actions. So उसके लिए क्या करेंगे फिर, अभी आप सिस्टमिकली ओरली लेंगे तो ब्लड कब बॉडी में जाएगा, डाइजेस्ट कब होगा, ब्लड में कब पहुंचेगा. ओके, उसके बाद फिर वो ब्लड के थ्रू फिर साइट ऑफ एक्शन पे कब पहुंचेगा, काफी टाइम लगेगा. लेकिन आप थ्रू द डायरेक्ट, अगर लंग्स का प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट इनहेल करेंगे तो डायरेक्ट लंग्स में जाकर ऐड हो जाएगा. तो ये रिक्वायर्ड थेरापेटिक एक्शन यहाँ पर बहुत फास्ट होंगी. तो इनहेलर्स के फॉर्म में ये लिया जाता है. ओके, स्टीम के फॉर्म में. अब स्टीम देखिए, स्टीम का भी, स्टीम थेरापी भी यूज होती है. स्टीम थेरापी में क्या होता है, डायरेक्ट कफ है, कोल्ड है, तो ऐसे टाइम में डायरेक्ट इनहेल, हॉट एयर इनहेल करते हैं हम लोग. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रीटमेंट. तो इनहेल, उसमें कुछ मटेरियल ऐड कर दिया अपने इनहेलेंट्स तो डायरेक्टली रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऐड हो जाएगा. तो उसके बाद है पिल्स एंड टैबलेट्स. अब जनरली वर्ड हम टैबलेट यूज करते हैं और बहुत सारे लोग उसको टैबलेट को पिल्स भी बोलते हैं. ओके, पिल्स एंड टैबलेट्स. ओके, तो वो दोनों का भी मतलब नियर अबाउट द सेम ही है. ओके, तो स्लीपिंग पिल्स, ओके, पेन किलर पिल्स, स्लीपिंग, जनरली पिल्स जो वर्ड है मैक्सिमम टाइम स्लीपिंग पिल्स के लिए यूज होता है. ओके, तो टैबलेट्स अलग अलग डिसीज के लिए हो सकते हैं, पिल्स अलग अलग डिसीज के लिए हो सकते हैं. ओके, वो एंटीपायरेटिक भी होते हैं,
एंटी कंजेस्टेंट भी हो सकते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव भी हो सकते हैं। तो अलग अलग डिसीज के लिए, सर दर्द, ओके, नींद नहीं आना, ये सारी चीज़ों के लिए भी पिल्स अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट पिल्स अवेलेबल होते हैं। तो दीज आर द पिल्स, दे आर सॉलिड डोजेस फॉर्म रहते हैं पूरे के पूरे, एंड swallowed थ्रू द ओरल रूट। ओरल रूट से हम इसको सॉलो करते हैं, ओके। तो दिस आर द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मैक्सिमम जो है डोजेस फॉर्म जो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, ओके, एल्डर एल्डर एज के अंदर, तो वो पिल्स और टैबलेट्स के फॉर्म में ही दिए जाते हैं, ओके। उसके बाद है नेक्स्ट सपोजिटरीज, ओके। अब सपोजिटरीज ये भी आपके लिए एक नया वर्ड है। तो दिस आर द कोनिकल, इसका जो शेप होता है वो कोनिकल शेप और ओवल सॉलिड्स, प्रिपरेशन ऑफ द ग्लाइसेरॉल, प्रिपरेशन का क्या होते हैं, ग्लिसरॉल एंड वैक्स। अब जनरली ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं, कॉन्स्टिपेशन वगैरह का जो ट्रीटमेंट होता है डॉक्टर्स कॉन्स्टिपेशन के, ओके। तो कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में ये जनरली यूज किया जाता है। स्मॉल चाइल्ड है, स्मॉल चाइल्ड में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, तो उस टाइम में भी ये सपोजिटरीज यूज किए जाते हैं। सो दे आर द कॉनिकल और ओवल सॉलिड प्रिपरेशंस of the glycerol and the wax for the insertion into the rectum where they are melt, जहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, इस वजह से ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेल्ट हो जाएंगे, एंड डिजॉल्व एंड डिस्पर्स टू एक्सर्ट द लोकल सिस्टमिक इफेक्ट। मेल्ट होने के बाद वो क्या होंगे, टेम्परेचर के हिसाब से मेल्ट होगा, कवर जो जिलेटिन बना हुआ है वो डिजॉल्व होने के बाद वहाँ पर जो लोकल इफेक्ट है, जो लोकल ड्रग का जो वहाँ पे इफेक्ट चाहिए, वो इफेक्ट हमको मिलेगा। तो दिस आर द सपोजिटरीज। तो डिफरेंट डोजेस फॉर्म हमने पढ़े हैं अलग अलग, ओके। तो ये टोटल डोजेस फॉर्म थे, इतने ही टोटल डोजेस फॉर्म होते हैं। उसके बाद पैचेस एंड एडहेसिव बोलकर भी एक डोजेस फॉर्म होता है, ओके। तो पैचेस एंड एडहेसिव क्या है, इट इज अ स्पेसिफिक डोजेस फॉर्म, okay, and the medications, it is used for the delivery through the skin into the blood stream, skin के through blood stream में भेजा जाता है using a transdermal patches, okay। it is medicated adhesive patches placed on the skin, चिकट पट्टी होती है, चिकट पट्टी, एडहेसिव टेप्स वगैरह बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर चिपकाए जाते हैं, और उसके अंदर जो ड्रग रहता है वो जो है स्किन के अंदर, ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है, which provide the controlled release of the medications। अब इसमें एग्जाम्पल कौन सा रहेगा, एक एग्जाम्पल है इसका पैचेस में, वो आता है स्कोपोलामाइन पैचेस, ओके, फॉर द मोशन सिकनेस, और एक आता है नाइट्रोग्लिसरीन पैचेस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अंजाइना, अंजाइना का ट्रीटमेंट जो होता है हार्ट, ओके, अंजाइना पेक्टोरिस, चेस्ट पेन जो होता है उसके केस में भी चिपकाए जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, स्किन पर चिपकाए जाते हैं, उसके थ्रू जो है मेडिकेशन, जो भी मेडिकेशन है, मेडिकेशन क्या होगा, डिलीवर थ्रू द स्किन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो ये भी जो है पैचेस एंड एडहेसिव, इट इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डोजेस फॉर्म। तो हमने टोटल डोजेस फॉर्म कितने देखे हैं, कोई बोल सकता, वन बाय वन? अब टोटल नंबर 16 है यहाँ पर, बताइए। आपके कैमरा ऑन कीजिए, मुझे ऐसा डाउट आ रहा है कि आप लोग है नहीं फिजिकली। हम करता हूँ कैमरा ऑन। उमर कबले है, ओम है, नौफ अंसारी है, तिमा है, मुकद्दम है, स्वालिया है, नहीं मुकद्दम स्वालिया नहीं है, जुवेरिया है, भाग्यश्री है, ओके, साक्षी पाड़गे है, तंजील उल्टे है, ओके। चलिए नौफ को पूछता हूँ मैं, बेटा कौन कौन से डोजेस फॉर्म है?
आपका मेरे ख्याल से आपका जो है माइक ऑफ है। एरोसिल कैप्सूल क्रीम डस्टिंग पाउडर ड्रॉप्स इम्यूशन और इमल्शन। इमे एनिमेस और हाँ। अच्छा। जेल। ओके, फातिमा से पूछो। ओके फातिमा, बोलो कौन कौन से डोजेस कौन है? डस्टिंग पाउडर, एरेसोल, कौन? क्रीम, हाँ जेल, हाँ हाँ ग्रैन्यूल्स, हाँ। हम्म। ड्रॉप्स। ओके चलिए ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमने पार्ट देखे हैं, डस्टिंग पाउडर, ड्रॉपलेट्स, इमल्शन, एनिमास, ये आपको पता होना चाहिए इसलिए बता रहा हूँ कि तो ये सारी चीजें जो है सिर्फ फार्मेसी वालों को पता होती है। लेकिन अभी आप जो है आपको भी पता है सारी चीजें कि इनिमास क्या होता है, जेल्स क्या होते हैं, ओके, ग्रेनुल्स क्या होते हैं, इनहेलेंट्स क्या होते हैं, ओके, पिल्स और टैबलेट्स किसको बोलते हैं, ओके, सपोजिटरीज किसको बोलते हैं। तो ये अलग अलग डोजेस फॉर्म में मेडिकल पे अवेलेबल होते हैं। अब इसके मीनिंग हमको समझ में आए तो हम बोल सकते हैं मेडिकल शॉप वाले को कि हमको ये चाहिए, इसका मतलब ये होता है। ओके, तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमको ये चीजें एज अ साइंस स्टूडेंट, एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट, ये हम सारी चीजें हमको मालूम होना चाहिए। ओके, कि तो ये हमारे लाइफ से, डे टू डे लाइफ से जुड़े हुई चीजें हैं। ओके, हम लोग इसको यूज करते हैं बचपन से लेकर एंड तक, हम ये सारी चीजों को यूज करते हैं, लेकिन हमको इसके मीनिंग्स पता नहीं होते। ओके, तो ये जनरल जितने भी हम ड्रग में पढ़ रहे हैं सब जनरल टर्म से, ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैव टू नो, साइंस स्टूडेंट को पता होना चाहिए क्या चीजें है। एक जनरल है, स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है कि तो हम फार्मेसी के स्टूडेंट नहीं है हम लोग, एक जनरल आइडिया ले रहे हैं कि ड्रग्स में क्या होता है। ओके, फार्मास्यूटिकल्स वगैरह में जो ड्रग्स बनाए जाते हैं उसमें जनरल एक आइडिया ले रहे हैं। हमारा काम है केमिकल्स रिलेटेड, तो ये ड्रग्स में भी होता है केमिकल्स, इसलिए हमको ये सारी चीजें मालूम होना बहुत जरूरी है। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट वाला फॉर्म, सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशंस। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन। अब इस सस्टेन का मीनिंग क्या होता है? लास्ट फॉर द लॉन्ग टाइम्स। सस्टेन का मीनिंग जनरली क्या लेते हैं हम लोग? जो चीज बहुत देर तक रहती है उसको बोलते हैं सस्टेन टाइम। ओके, और ऐसे फॉर्मुलेशन जो काफी टाइम के लिए बॉडी के अंदर रहते हैं उसको हम बोलेंगे सस्टेन रिलीज। ओके, रिलीज होना यानी घुलना बॉडी के अंदर, ड्रग्स को छोड़ना हो। ओके, तो कोई ऐसी एक टैबलेट है, ड्रग्स है, जो बॉडी में हमने लेने के बाद वो लॉन्ग टाइम तक धीरे 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 घुल रही है बॉडी के अंदर। तो ऐसे जो फॉर्मुलेशन जो तैयार होते हैं उसको बोलते हैं सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशंस। हम डायबिटीज के पेशेंट्स में देखते हैं कि जो है ग्लूकोज का कन्वर्जन उन्हें होल बॉडी में जो है कंटिन्यूअसली, जैसा बॉडी के अंदर हम फूड इंटर करते हैं तो जैसा ही ग्लूकोज का फॉर्मेशन होते रहता है, तो जैसा ही ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ तो उसका कन्वर्जन रिक्वायर्ड रहता है। तो ऐसे टैबलेट्स लेने का, ओके, सस्टेन रिलीज जो जैसे ही ग्लूकोज आता है वैसे ही उसको कन्वर्ट करते रहेंगे, यानी सस्टेन ऐसे टैबलेट्स लेंगे जो कि कंटिन्यूअसली काम करते रहेंगे, उसका जो भी टाइम पीरियड रहेगा 8 आवर्स 10 आवर्स के लिए, तो उसको बोलेंगे हम सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन। तो सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशंस क्या होते हैं? ओके, इसका जो इफेक्ट होता है, रैपिड रिलीज ऑफ द ड्रग्स, okay, and from its dosage form and reaching maximum concentrations which then decays exponentially until the next administration। अभी जो भी डोजेज फॉर्म दिया हुआ है नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन का टैबलेट में कहा जाता है कि एक सुबह में लेना है एक शाम में लेना है। कभी कभी क्या बोला जाता है कि सिर्फ सुबह लेना है, आज सुबह लेंगे तो नेक्स्ट डे सुबह लेंगे। तो ये जो ड्रग्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये वर्क करते हैं अनटिल कब तक, जब तक कि नेक्स्ट डोज हम ऐड नहीं करते।
जो टाइम दिया हुआ है नेक्स्ट डोज का, तब तक इसका काम चलता रहेगा, तब तक ये ड्रग्स रिलीज होते रहेंगे स्लोली स्लोली. ओके, एंड रैपिड रिलीज ऑफ द ड्रग रीच कहाँ पे रीच होंगे वो, where the drug may not be required. Whereas the general aims of any medication is to generate the response in the specific area or the organ of the body required treatment. So generally हम जो sustained release formulations ये क्या होते हैं, पॉलीमर यूज करते हैं फॉर द इनकैप्सुलेशन ऑफ द ड्रग्स. ओके, पॉलीमर यूज करेंगे उसके लिए, किसके लिए, वो ड्रग्स को इनकैप्सुलेशन करने के लिए. और व्हीकल कोई और यूज करेंगे. ये क्या हो गया, पॉलीमर इज द व्हीकल. व्हीकल यानी वो ड्रग को लेकर जा रहा है बॉडी के अंदर. फॉर द कैरियर ऑफ द ड्रग्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज द कैरियर ऑफ द ड्रग्स. सो विच क्या करेगा वो, प्रोटेक्ट द, क्या प्रोटेक्ट करेगा, एक्टिव एजेंट, जो भी उसके अंदर एक्टिव एजेंट रहेगा ड्यूरिंग द पैसेज थ्रू द बॉडी. पास होते हुए हमको रिक्वायर्ड एक्शन चाहिए, कितने घंटे के बाद चाहिए, तो स्लोली स्लोली रिजॉल्व होते हुए रहेगा. तो ये सारा जो है इस तरह से इसका जो है एक्शन, रिक्वायर्ड एक्शन बॉडी के अंदर होते रहेगा. तो जो हमारा जो पार्ट है रिमेनिंग पार्ट, वी विल कवर दिस पार्ट इन द रिमेनिंग पार्ट, वी विल